Good morning, dear students. Hope you all are fine, bache. Let's do the remaining part of chapter reading of chapter number 6. I put the brush back into this paper wrapping and handed it to her. See, beta, we did in the last class we did that the lady had who was standing outside the Reiner's shop for quite a long time entered the shop when the American had been searched through his clothes for the missing flower ring. So her arrival at that moment made the narrator suspicious. Why she is entering at this time? Okay, and moreover she came for repair, and everyone knows that Reiner does not do the repair work. So why she brought that? And now what William Morris was doing, he was giving the brush back to the lady, as he was giving it to her. She put it into her handbag, using her right hand to do this. See, beta, now she had taken the brooch and she was doing keeping it in her purse while using right hand. And when she took out that brooch from her wallet, or you can say purse, she used it. She used her left hand, and then to leave the shop. And after putting it, she was just turning to leave the shop. "One moment, ma'am," I said. William Morris told her to stop that time. She heard, but she pretended होता है a false act that she hadn't. कहते कि उसने act तो ऐसे करे से उसने सुना ही ना हो. She walked on towards the door. वो डोर की तरफ जा ही रही थी. "Pardon me," I said. "Pardon me, excuse me, if you do not stop, I shall press the alarm and the door will be locked." कहते अगर आप रुके नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलार्म प्रेस करना पड़ेगा, and the door will be automatically locked for safety, as you see in the malls. She stopped, but she did not look around. कहते वो रुक तो गई लेकिन पीछे मुड़ के उसने देखा नहीं. Miss Suskin stood like a statue behind the other counter while I went up to the young woman. कहते कि मिस सस्किन बहुत ज़्यादा क्या थी, पजल थी कि हो क्या रहा है. वो स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़ा होके आराम से सब कुछ देख रही है. "मैम," आई सेड, "वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लेजेंटनेस." मैं यहाँ पे कुछ भी एक सीन क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ. मतलब ना तो आपको प्रॉब्लम ट्रबल हो, ना मुझे ट्रबल हो. "काइंडली हैंड मी द रिंग विच यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट." कहते जो आपके हैंड में, आपके लेफ्ट पॉकेट में जो रिंग है वो प्लीज़ मुझे दे दीजिए. "इफ़ यू विल नॉट, मिस सस्किन विल प्रेस द अलार्म." अगर आप ऐसा नहीं करते तो मिस सस्किन क्या करेंगे, अलार्म प्रेस कर देंगे और डोर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. द यंग वुमन वॉज लुकिंग डेथली पेल. डेथली यानी कि बिल्कुल, इसके किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका फेस बिल्कुल वाइट हो जाता है, पेल हो जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है. तो यंग लेडी का फेस भी क्या हो गया, बिल्कुल डर के मारे पीला पड़ गया. एंड वेरी फ्राइटेंड, शी वॉज वेरी फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था. विदाउट सेइंग अ वर्ड शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग. कहते उसने बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट में क्या रखा, हैंड डाला और मुझे रिंग निकाल के दे दी. शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर. कहते वो शॉप से ऐसे भागी जैसे वहाँ पे क्या हो, शॉप में आग लगी हो. It was then that Mr. Reiner came out of his office with the American. कहते और उसी टाइम क्या हुआ, मिस्टर राइनर का अमेरिकन के साथ शॉप अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे. Whose face was one big grin of satisfaction. कहते और अमेरिकन के जो फेस में था कि बहुत ज़्यादा क्या था, एक ग्रिन होता है, काइंड ऑफ स्माइल, a sign of satisfaction also. Why? Because he could not find the ring, and Mr. Reiner was not smiling. Mr. Reiner was not smiling because he did not find the ring from the American. He was as white as a sheet. एक वाइट, जैसे वाइट क्लॉथ होता है बेटा, उनका फेस वैसे था क्योंकि उनकी जो डियर रिंग थी वो मिसप्लेस थी. हिज वॉइस वॉज शेकिंग एज ही सेड, "आई एम सॉरी सर, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज़ मी." वो अब अमेरिकन से माफ़ी मांग रहे हैं कि आप समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे. "आई बेग यू पार्डन, इंडीड आई डू." मैं आपसे सच्चे दिल से क्या करता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ. It was then that I opened my hand and showed the ring. और तभी मैंने क्या कर दिया, मिस्टर राइनर को रिंग दिखाई अपना हैंड ओपन करके. "It is the pity that you were not there to see Mr. Reiner's face." विलियम मॉरिस कह रहा है रीडर्स को कि ये बहुत बुरा है कि आप लोग वहाँ नहीं थे. जो सेटिस्फेक्शन, जो जॉय मिस्टर राइनर के फेस पे था, जो सरप्राइज़ था, आपने उसे मिस कर दिया. वॉट अ मिक्सचर ऑफ एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, जॉय, खुशी एंड थैंकफुलनेस. और वो मुझे थैंक यू कर रहे थे कि तुमने मेरी फेवरेट रिंग क्या कर दी है, ढूंढ दी है.
एज फॉर दैट अमेरिकन ही वॉज आउट ऑफ द शॉप दैट इंस्टेंट. एकदम से वो क्या हो गया, अमेरिकन शॉप से बाहर चला गया, लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन. कहते हैं जैसे बंदूक से गोली निकलती है, वो ऐसे ही फटाफट भाग गया. हाउ डिड यू फाइंड इट, गैस्प मिस्टर राइनर फॉलिंग इनटू अ चेयर. मिस्टर राइनर अपने एक चेयर पे बैठते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे मिली ये. वो इतने एक्साइटेड थे कि वो सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहे थे. Well, I began from the first that fellow seemed a strange customer for us. See, beta, Americans prefer showy jewelry, but and Rhinos were famous for antique jewelry. That type of American does not come to us as a rule. As a rule, मतलब एज अ रूटीन यू कैन से, वो लोग अमेरिकन्स हमारे पास रूटीन कस्टमर्स नहीं है. दे वॉन्ट समथिंग मोर मॉडर्न एंड शोई देन वट वी सेल वॉट एंटीक ज्वेलरी. बिसाइड्स ही डिड नॉट नो अ थिंग अबाउट ज्वेलरी. कहते उसे ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिकॉज ही वॉज गेसिंग द प्राइस द ज्वेलरी बाय इट्स कॉस्ट. ओके, एंड ही डिड नॉट इवन नो वट ही वॉन्टेड. उसे ये भी नहीं पता था कि मुझे चाहिए क्या. पीपल हु कम टू राइनर्स नो वट दे वॉन्ट एंड दे जनरली नो समथिंग अबाउट एंटीक ज्वेलरी. जो लोग राइनर्स पे आते हैं उन्हें पता होता है कि हमें क्या लेना है, और उन्हें डेफिनेटली एंटीक ज्वेलरी की क्या होती है, नॉलेज होती है. एंड सो आई सेड टू माई सेल्फ, वाई हैज़ ही कम टू अस. तो मेरे माइंड में मुझे अपने अंदर लग रहा था कि वो आया ही क्यों है हमारे पास. राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर राइनर. कहते हैं हाँ बिल्कुल सही. दैट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम. तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, तुम बहुत चालाक हो. देन आई कॉन्टिन्यूड, देयर वॉज अ यंग वुमन, आई सॉ हर स्टैंडिंग अबाउट फॉर अ क्वाइट अ वाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले अपोजिट. कहते वो हमारे डिस्प्ले में देख रहे थे तो भी मुझे थोड़ा डाउट ना होता, बट शी वॉज लुकिंग एट द डिस्प्ले ऑफ अंडरटेकर. एक कसाई की शॉप में वहाँ पे जो दो अर्न्स पड़े हैं उनको देख रही है वो, और काफ़ी देर करती रही है. द अंडरटेकर सेड द मिस्टर राइनर, हाउ वेरी स्ट्रेंज. कितना अजीब है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं देखने लायक. तो वो इतनी टाइम क्या कर रही थी वहाँ खड़े होके. दैट इज़ वट आई थॉट. मेरे माइंड में भी यही आया. विलियम मॉरिस कह रहा है, एंड वाई वॉज शी वेटिंग ऑल अबाउट ऑल द टाइम इफ शी इंटेंडेड टू कम इन. कहते अगर उससे अपने ब्रश रिपेयर करने के लिए आना ही था तो वो पहले क्यों नहीं आई, इतना टाइम उसने वेट क्यों की. वाई डिड शी ब्रिंग अस अ चीप ब्रश टू रिपेयर. और मोर ओवर वो क्या लेके आई, एक चीप ब्रश लेके आई जिसको रिपेयर करने की ज़रूरत थी. एवरी वन नोज दैट राइनस हैज़ नथिंग टू डू विद चीप ट्रिंकेट्स. ट्रिंकेट्स होता है बेटा स्मॉल पीसेज ऑफ ज्वेलरी कह सकते हैं. एंड नेवर डज चीप रिपेयर्स. कहते हैं ना तो हम सस्ती ज्वेलरी में डील करते हैं और ना ही हल्के सस्ते क्या करते हैं, रिपेयर वर्क करते हैं. Certainly not, said Mr. Reiner. हाँ भाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं. Deeply shocked at the thought, go on. कहते हैं हाँ मैं तो बड़ा हैरान हूँ, ऐसा भी कुछ होता है क्या. वैसे तो आगे बोलो क्या हुआ आगे. Now she isn't left-handed, but she took the packet out of her bag with her left hand. कहते ना जो यंग लेडी थी शॉप में एंटर किया था जिसने अपने ब्रॉच से अपने पर्स से क्या ब्रॉच निकाला था, उसने प्रिटेंड एक्ट क्या किया कि मैं वो लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन वो एक्चुअली क्या थी, वो राइट हैंडेड थी. And she put her hand just where the American who was left-handed had put his after I had taken that last tray of rings out of the safe. कहते जब मैं लास्ट ट्रे निकाल रहा था वहाँ से सेफ में से, तो अमेरिका ने जहाँ अपना हाथ रखा तो मैंने उस लेडी ने भी वहीं पे रखा लेफ्ट हैंड अपना. जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग हैड डिसअपीयर्ड. मैंने क्या नोटिस किया था अमेरिकन का हैंड जहाँ पे जब रिंग गुम हुई थी उससे पहले, तो उस यंग लेडी ने भी क्या किया था, अपना हैंड वहीं पे प्लेस किया हुआ था, पुट किया हुआ था. एंड वट हैड ही डन विद इट, आस्क्ड मिस्टर राइनर. तो उसने किया क्या रिंग के साथ. इट वॉज लाइक दिस, आई एक्सप्लेन. मैं ऐसे बता रहा हूँ मिस्टर राइनर को. इट ऑल बिकेम क्लियर टू मी व्हेन आई वॉज पिकिंग अप दैट पीस ऑफ पेपर. सी एक्सीडेंटली द लेडी हैड थ्रोन द पेपर ऑन माई साइड, यू कैन रिमेंबर. तो जब उस यंग लेडी ने क्या किया था, एक्सीडेंटली वो पेपर नरेटर की तरफ फेंक दिया था. व्हेन द अमेरिकन लुक सो एंग्रीली एट मिस सस्किन. और जब अमेरिकन भी क्या कर रहा था, मिस सस्किन की तरफ बहुत घूर के देख रहा था. आई नोटिस दैट ही हैज़ स्टॉप च्यूइंग हिज गम. तब मैंने नोटिस क्या था कि उसने अपनी च्यूइंग गम खानी बंद कर दी थी. नाउ यू कैन नॉट स्वेलो च्यूइंग गम. आप च्यूइंग गम को निगल नहीं सकते हैं. यू कैन नॉट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर ईदर. आप उसको फर्श पे नहीं फेंक सकते हैं ऐसे ही. वी हैवेंट गॉट अ वेस्ट पेपर बास्केट हेयर. ना ही हमारे यहाँ पे वेस्ट पेपर बास्केट है. एंड इन एनी केस ही हैड नॉट मूव्ड एन इंच फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. और वहाँ से वो एक इंच भी हिला नहीं है, तो च्यूइंग गम गई कहाँ. ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच. उसने कहीं ना कहीं च्यूइंग गम कहाँ रखी होगी, उसकी पहुँच में ही. वेयर एल्स कुड बी ही हैव पुट इट एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर.
एज होता है बेटा किनारा कोना, और उसने काउंटर के किनारे पे क्या रखी होगी, च्युइंगम को पेस्ट कर दिया था। एंड देन ही प्रेस द रिंग, और च्युइंगम अगर जब आप चू करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है और वो इजीली पेस्ट भी हो जाती है, और अगर आप उसमें रिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें चिपक जाएगी। into the gum for the girl to take out when she came into the shop। और उनको दोनों का क्या था, ये प्लान था कि वो लेडी बाद में आएगी और च्युइंग गम से क्या करेगी, रिंग को बाहर निकाल के ले जाएगी। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और उसने भी ऐसा ही किया। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट, गर्ल रेफर्स टू द यंग लेडी ऑफ कोर्स, जैसे वो जाने लगी, आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। और मैंने क्या देखा, वहाँ पे काउंटर के नीचे देखा, एज पे देखा, तो मुझे वहाँ पे क्या मिला, च्युइंग गम का मार्क मिला। हेयर इट इज़, अब वो दिखा रहे हैं कि ये देखो अब च्युइंग गम का मार्क है। लुक यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट, और च्युइंगम के अंदर रिंग ने जो मार्क डाला है वो भी आप देख सकते हो। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, लोग कितना डिफरेंट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सेम हैपनिंग्स पे, कितना डिफरेंट सोचते हैं। मिस्टर राइनर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि चोरी की इंसिडेंट को लेकर, और वो ग्रेटफुल होते, थैंकफुल थे मुझे क्योंकि मैंने उनके रिंग को सेव कर दिया था। बट मिस सस्किन आई नोटिस ओनली सेड टस टस, आई नोटिस दैट शी ऑफन सेज टस टस व्हेन एनीथिंग अपसेट्स हर, जब भी मिस सस्किन क्या होती है, नर्वस होती हैं या परेशान होती हैं तो वो ये वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, I hope you are clear with the story. Now let's do the this thing exercise, understanding the story. Each statement given below contains a word phrase which makes it false. Underline the wrong word or phrase and rewrite the correct statement in the space provided. आपको बेटा ये बुक में करना है। The narrator owns the Rainer's jewelry shop. No, he was a assistant there. The narrator works at the Rainer's jewelry shop. Second one, the Rainer sells high-priced modern jewelry. No, they sell high-priced antique jewelry. ANTIQUE. Please learn the spellings properly. The young woman standing on the opposite side of the Rainers was staring at the displayed jewelry. No, beta, she was not staring at the jewelry. Rather, she was staring at the undertaker's window, and there were 2 urns in it. Okay. Now fourth one. The narrator showed the American 5 trays of rings in all. No, beta. He showed only 4 trays, and 5th was in the safe which he was about to take out. Okay. The young woman said she had come to the Rainers to sell her filigree brooch. Beta, she came for repair of her filigree brooch. Okay. The young woman hid the flower ring in the right pocket of her purse. No, she hid it in her left pocket, and she pretended that she was left-handed. Okay, I hope you are clear with the chapter. Feel free to ask any doubt if you have, and try out question answers beta of part B in your rough notebook. Till then, remain safe. Bye.